टॉप से। आप सबका इस खास दिन, इस खास मंच, इस स्पेशल प्लेस में स्वागत है। ये हमारा एक खास कॉन्क्लेव है जिसे हम कोशिश कर रहे हैं कि साल दर साल करें। पिछले साल भी हमने किया था, आज ये इस बार दूसरा साल है और इस साल हमें उम्मीद है कि ये साल पिछले साल से भी ज्यादा जोरदार, यादगार होगा और आप सबको याद रहेगा। हमारी कोशिश है युवाओं को जोड़ने की, युवाओं को लोगों से जोड़ने की, मुद्दों से जोड़ने की, वो मुद्दे जो मायने रखते हैं हम सबके लिए। तो ये सारे मुद्दे लेकर के हमारे सारे सीनियर एंकर्स, मेरे सारे सीनियर कॉलीग्स आज आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी मनोरंजन भारती को, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर। कॉन्क्लेव हमने इसलिए नाम रखा है क्योंकि जमाना जो है अब बदल गया है। आप देखिए क्रिकेट में भी मिताली राज का जमाना है, विराट कोहली का जमाना है और ये स्टार्टअप की दुनिया है जहां पर कि सब कुछ युवा कर रहे हैं और उसी से एक समझ उनमें आती है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्रिकेट में भी हीरो बदल गए हैं। तो निश्चित रूप से इस युवा कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और एक समझ जो है युवाओं में आए, कैसे वो मुद्दों से लड़े। इतने सारे मुद्दे हैं, उनके बीच उनकी क्या समझ है, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं। हम सब जो है आज दिन भर इस बात की कोशिश करेंगे, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि हम देश जिस दौर से गुजर रहा है उस दौर में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। मैं डॉक्टर रॉय को आमंत्रित करना चाहूँगा यहाँ पे हम आए सर, और हम सब के बीच में सबसे बड़े युवा डॉक्टर रॉय ही हैं। डॉक्टर रॉय का स्वागत किया जाए। सबसे बड़े युवा, correct, young at heart. Welcome everybody. Thank you very, very much for coming. It means a lot to us. It's like your spirit lifts us. I think by your presence here and all our viewers, it's like crowdsourcing spirit, if we can coin a term. And since this is a conclave about youth, crowdsourcing is the way to go. You don't have to be indebted to anybody. The entire country supports you and gives you the spirit to fight on. I stand here to say one particular thing, that in NDTV and our entire network, I would honestly say NDTV India makes us most proud. This is the one channel that stands out amongst a crowd of, well, I wouldn't call them news channels, sensational news entertainment channels. And to stick to the journalism that NDTV India has done and is continuing to do is really a wonderful, wonderful achievement. And here's one person, and there are many others with us. The journalism of NDTV India is the finest journalism. It's honest journalism. And this is the kind of journalism any democracy really needs. So what is perceived in India today, in the current, to be a successful channel? You have to do three things to be successful, especially in the current last few years. And I wouldn't say just in the last 3 years, I'd say in the last 5-7 years since tabloid journalism became popular. There are three things. The first one, and we need to decide, should we be doing these three things to be perceived to be successful? We think we are successful. We are happy that we are going the path of The Economist or the New York Times or the Washington Post, great examples of global journalism. And we want to be like that in India.
But to be seen in India to be successful, these three things, and I want to ask you, should we do these three things? One, the first thing you must learn to be successful is how to fiddle TRPs. There are consultants all over the country ready to help you. It is the best return any business could ever get. You pay a consultant 20 crores around the country, and TRPs will go up enough to give you a return of 100 crores in advertising revenue. So 20 crore investment, terribly dishonest if you ask me. But you know, it's called managing the environment. Arey, this is India, you have to manage the environment. So 20 crore investment gives you 100 crore ad revenue. Should we be doing that? I see everybody shaking their head. No, we will never do that. We will never pay these consultants, because if you do that, how can you, if you are a fiddler, how can you criticize anybody of being corrupt? So we reject the first ingredient of what is considered success. Now, BARC is a great organization, but it needs more powers. It can't do anything to control broadcasters who fiddle. It's tried, it's taken them to court, they've got to stay, and life carries on. So BARC, excellent establishment, but needs power to stop people from fiddling TRPs and make it more credible. Secondly, the second ingredient to be successful is you've got to be sensationalist. You can't be, honest and straightforward and truthful. That's not success. Success these days is just shout and scream and make a noise and frankly exaggerate any little thing into dishonest proportions. Should we do that? It's easy to do. You would love to do it. No, we will not do that. We will not go tabloid, we will not go sensational, and we will not follow the second rule of being successful. And what's the third rule? The third rule which you must follow to be really successful these days is to praise the authorities, praise everybody. Does a democracy need that? Is that what the role of the media is in a democracy? We have a commitment to our viewers. We have a commitment to, let's not be too pompous, but to history. We have, what are we doing here if we are going to be a part of an establishment that collapses? If we are uncritical, if we are not the eyes and ears of the people. We are your eyes and ears. Should we stop doing that? Should we become like those three monkeys and just say, oh, nothing's wrong, everything's fantastic, everything that the authority does is fantastic? I think that would be terrible for our country. So, if you ask me, the three aspects of being successful today goes against our democracy. And the one thing we are really proud of in India is our fabulous democracy. And we must cherish it, and as media people, we must fight for it. And NDTV will not fall for these three new criteria. And I thank you all once again for outsourcing your spirit to us just by being here and watching us. And I can't tell you how many people come up to all of us at airports, on the roads, and say, we watch you, carry on, we are with you. And that gives us a huge amount of support. And let me tell you finally that it is the youth mostly that come up to us, the young people in this country. That is our hope. They are the strength of this country. And okay, what we have left them is a democracy, but nothing much else. We've given them lovely pollution, we've given them a lawless, corrupt society. But the youth in India are different, and that's why this whole conclave is about the youth, because you are our hope. And for you, we will not succumb to those three criteria of being successful. Thank you very much once again for being with us. Thank you.
थैंक यू डॉक्टर रॉय। शुक्रिया डॉक्टर रॉय। एक बात जरूर है कि उनके दिखाए हुए रास्ते को पर चलकर हम कोशिश जरूर करेंगे कि आज का इवेंट जरूर सक्सेसफुल रहे। एक बार फिर से पूरे एनडीटीवी परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत है। Ladies and gentlemen, once again, a big warm welcome to Kent RO presents NDTV Youth for Change, powered by विमल इलायची। आज इस मंच पर कई मेहमान आएंगे और हर मेहमान की अपनी एक कहानी है। हर किसी की कहानी में उतार चढ़ाव हैं, चुनौतियां हैं, संघर्ष है, कई मोर्चों पर लड़ाइयां भी हैं, कुछ हार है तो कुछ जीत भी है। लेकिन कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो सुर्खियों में छा जाते हैं और फिर अगर वो बॉलीवुड से जुड़े हों तो ये लाजमी है। पर सच तो यह है कि बॉलीवुड की जितनी बातें अखबारों में छपती हैं उतनी ही ज्यादा अखबारों से छुपती भी हैं और अक्सर इन छुपाई गई बातों पर कोई बात नहीं करना चाहता है, सब बोलने से बचते हैं। लेकिन एक आर्टिस्ट है जो लगातार बेबाक तरीके से इन बातों पर न सिर्फ बोलती आई है बल्कि बॉलीवुड के पुराने घिसे पिटे रिवाजों को तोड़ती भी आई है। वक्त है कंगना की कहानी का रवीश के साथ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे फिल्म स्टार का इंटरव्यू करते हुए कम ही देखा होगा। आम लोगों से ही फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन जब भी मैंने किया है मेरी कोशिश रही है कि मैं गूगल में जाकर सर्च ना करूं। पर आज मुझसे ये गलती हो गई कि मैं गूगल में कुछ सर्च करके आया हूँ, वो नहीं पूछने वाला। लेकिन कुछ बातों से मैं बहुत परेशान भी हुआ कि लोग शाहरुख खान के बारे में भी लिखते हैं कि ही केम फ्रॉम नोवेयर। बताइए, दिल्ली का लड़का, अगर दिल्ली वाला भी नोवेयर है तो मंडी की लड़की और मोतिहारी का लड़का कहाँ जाएगा आपके दास्तानों में? इतना भी जुल्म मत कीजिए हम लोगों पे। हम वो लोग हैं जो लाखों की संख्या में रोज़ अपने गांव घरों से चलते हैं, लोकल पे लदाते हैं, जनरल बोगी में बैठते हैं, अपने अपने सपनों को लेकर आपकी मुंबई और दिल्ली को जवान करते हैं। वरना आप किसी भी अमीर और रईस माने जाने वाले इलाके में जाइए तो वो अब पुरानी ढलती हुई शाम की तस्वीर लगते हैं। वहाँ अच्छी सड़कें बन गई हैं, मकान भी बहुत अच्छा है, बच्चे किसी और देश में चले गए हैं और उसके ऊपर मनी प्लांट घर को ढक चुका है। तो हम वो लोग हैं जो आपके शहर को ज़िंदा करते हैं, नया करते हैं। हम जब आते हैं तो हमसे बहुत कुछ मुंबई को मिलता है, हमसे बहुत कुछ दिल्ली को मिलता है। तो सोने से पहले हम जैसे छोटे शहर वालों का शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा कि अगर हम ना आए रोज़ तो आपकी ज़िंदगी बहुत महंगी हो जाएगी, और हम जैसे लोग ना आए तो इस शहर में बड़े बड़े लोग इतने समझौते कर जाते हैं कि बोलने वाले लोग कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर दिन वो शहर वो सबसे अच्छा होता है हर दिन जो उठकर किसी नए का स्वागत करता है। मैं कंगना रनौत का स्वागत करना चाहूँगा। हंसल मेहता उनके नई फिल्म सिमरन उसके निर्देशक हैं। तो आप दोनों आइए, आपका ही मंच है और जो बेताब हैं आपसे रूबरू होने के लिए। ये कंगना एंथम था। कंगना ने अपने, तो मैंने कहा कि जो गलती मैंने की है गूगल सर्च करने की, उस गलती का थोड़ा हिसाब कर लेते हैं। मैं बहुत हर्ट हुआ। रवीश सर, मुझे सबसे पहले कहना है कि इससे पहले मुझे आज तक कभी भी इमीडिएटली अपने पास्ट के बारे में सोच के या छोटे शहरों के बारे में सोच के, और जो नज़रिया इन्होंने छोटे शहरों को, बिग सिटीज़ की, जो छोटे शहरों की जो महत्वता है बड़े शहरों को के लिए, और छोटे शहरों के लोगों का जो एक नज़रिया दिया है, इतना खूबसूरत और इतना अच्छा, ये कभी मैंने सोचा ही नहीं। तो बहुत अच्छा लगा आपने इतना अच्छा नज़रिया दिया।
तो मैं वो हिसाब करना चाहता हूँ। मैंने देखा कि जो लोग कंगना के बारे में रिव्यू लिखते हैं वो कंगना का रिव्यू कम लिखते हैं, उनके कपड़े ज़्यादा सिल रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वो पैडल दबा के गड़गड़ गड़गड़ गड़ कोई कपड़ा सिल रहे हो। तो देखिए किस तरह की बातें हैं। गॉकी, रस्टिक, डी ग्लैमराइज्ड ब्यूटी, अगली सलवार कमीजेस, क्रॉप्ड स्वेटर्स, ट्रैक सूट्स। मुझे तो लगा कि ये सब पहन के हैंडसम हुआ जाता है। ट्रैक सूट पहन के, इसको भी पुराने स्टाइल में। विदाउट वैनिटी, कुसुम्स वेडिंग लहंगा इज अनग्लैमरस। लहंगा भी अनग्लैमरस? बताइए, सारी लड़कियां हाँ डोंट हैव मच इन कॉमन विथ बाबी। तो ये न, जबकि हिंदुस्तान की 90% लड़कियां इसी तरह से पहनती हैं। आपको हंसी नहीं आती? अगर आपको इन सब चीज़ों का दोबारा काट के लिखना होता तो अपने कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में क्या लिखती हैं आप? आई थिंक हमारे जो जिस वक्त पे मैंने शुरू किया था फिल्मों में काम करना, उस वक्त एक अपनेपन को लेकर, अपने समाज को लेकर, अपने स्किन कलर को लेकर, अपने लोगों को लेकर, भाषा को लेकर एक अजीब सी शर्मिंदगी थी पूरे वातावरण में। तो उस वक्त पे मैंने शुरू किया से 10 साल पहले। तो ये जो किरदार है हरियाणा एक्सेंट, पहली बार लोगों को लगा कि क्या कमाल की चीज़ है हरियाणा का एक्सेंट, क्योंकि कभी देखने को मिला ही नहीं फिल्मों में, आई मीन मेन स्ट्रीम में। तो लेकिन इंग्लिश एक्सेंट, फ्रेंच एक्सेंट, इससे हमारे लीडिंग कलाकार भी मिलेंगे कि हमेशा उनको दिखाएंगे कि ये जो हैं बाहर से हैं, या अधिकतर लड़कियां जो फॉरेनर्स की तरह लगती हैं उन्हीं को ही ज़्यादा महत्वता देना। तो इस तरह के जो गारमेंट्स हैं या इस तरह के जो किरदार हैं, जिस लहंगे की आप बात कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल हरियाणवी घाघरा उसने पहना है कुसुम ने अपनी शादी में। तो जब पहली बार देखेंगे आप सिनेमा में तो लगेगा उसको देख के कि ये क्या चीज़ है, ये अलग सा कुछ देखने को मिला। क्योंकि हम अपने समाज को लेकर, अपने लोगों को लेकर उनको, हमने कभी उनका रिस्पेक्ट, उनका ड्यू दिया ही नहीं है। तो एक अलग सा अनुभव तो हो जाता है वो। मैं अपने अनुभव से भी, और बहुत सारे नौजवान इस देश के जो रोज़ किसी न किसी शहर से बड़े शहर की तरफ यात्रा करते हैं या बड़ा ख्वाब देखते हैं, उनके बीच एक घबराहट होती है कि जा रहे हैं बड़े वाले। हर कोई, मैं हर इंटरव्यूअर को देख रहा था कि वो पहला सवाल स्मॉल टाउन के फ्रेम से पूछता है कि एक पिंजड़ा आपके ऊपर रख दिया जाता है। मैं इस स्मॉल टाउन वाली से जानना चाहता हूँ कि ये बिग टाउन आपको कैसा लगा? ये लोग कैसे हैं आपकी नज़र में? आई थिंक जो एक बिग टाउन में, जो मैं आपको अपना बहुत पर्सनल अनुभव बताती हूँ। जिन परिवार में हम पले बड़े हैं या जिस तरह से हमारी परवरिश रही है, आई थिंक छोटे शहर के जो लोग होते हैं उनमें अपनी कमियां होती हैं और बड़े शहर के लोगों की अपनी खामियां होती हैं। तो वो हमेशा समाज को ही देख के चलते हैं कि बुआ जी क्या सोचेगी, चाची क्या सोच रही है। वो हमेशा लोगों में ही मगन रहते हैं। लेकिन बड़े टाउन का मैंने देखा, उनके लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट है कि हर चीज़ वो लोग पैसे के ही एंगल से सोचते हैं। तो लोगों की महत्वता कम होके ये बड़े शहर में बुआ जी नहीं होती। बुआ जी किसी को नहीं होती। बुआ जी और मौसी जी की इतनी नहीं पड़ी होती। तो आई थिंक ये उनकी कमी है। और छोटे शहर वाले कुछ ज़्यादा ही कि लोग क्या सोचेंगे उसी नज़रिए से जीते हैं। और बड़े शहर वालों को बस एक ही, चाहे वो अपने बच्चों को जो परवरिश देते हैं, इट्स सो मनी ओरिएंटेड कि जो इंसान है और जितना उन पे जो प्रेशर्स होते हैं फैमिलीज पे, या तो मतलब हमारे गांव में तो खटिया ढाल के मतलब बेकारी में पड़े रहते हैं, इतनी किसी को पड़ी नहीं होती कि दे आर नॉट सो एम्बिशन ड्रिवन, बट एट द सेम टाइम देयर इज लाइक अ मिनट टू what you go smell the roses. वही शहरों में they work a lot, but there is no holding back. You go to any extent to. आप गई फिल्म स्टार बनने के बाद अपने गांव में? हाँ, मैं तो जी बिल्कुल, मैं तो जाती हूँ। आपने उन रिश्तेदारों को भी फोन करके सुनाया कि आप तो बड़े ये बोला करते थे, मैं तो ये बन गई? वो तो अभी मुझे ऐसी नजर से देखते हैं कि मतलब ये क्या चीज है। वो ऐसी नजर क्या है? ये क्या हमारे दो अलग अलग बातें हो गई। ये क्या चीज है और वो ऐसी नजर क्या है? मतलब अभी वो ऐसी नजर इसलिए कि उनको लगता है कि हम सब में, जो हम सब एक जैसे हैं, हम सब में ये इतनी अलग कैसे है। और दूसरी उनको ये नहीं समझ आता कि देखने में भी हम जैसी लगती है। हीरोइन कैसे बन गई? मतलब बिकॉज आई एम देयर। आपके रिलेटिव्स में चाहे पहले जैसे सोचा होगा, लड़कियां होंगी जो कॉलेज जा रही होंगी या जाने वाली होंगी, तो उनके अपने सपने होंगे।
सबके होते हैं। क्या आप उनको बात करके स्ट्रेंथ देती हैं कि करो, जैसे मैंने कर लिया तुम भी उनको कर आई लो? थिंक यूथ को तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस हो गया है जो मेरा सक्सेस है। हाँ। तो वो तो सब अब अपना काम कर रहे हैं जो करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी ने काफ़ी चीज़ें इन्फ्लुएंस की हैं मेरी। जैसे मतलब काफ़ी स्टोरीज़ हैं मेरी, जैसे कोई बहनें हैं या भाई हैं, जिस तरह से वो अपनी जर्नी चाहते हैं, किससे वो शादी करना चाहते हैं। कोई डिवोर्सी है तो शी इज़ रीमैरिंग। तो अब ये लाइक आई सेड, अब ऐसा नहीं है कि कौन क्या कहेगा, बट देयर इज़ अ लॉट मोर कंसिडरेशन फॉर कि उनका क्या नज़रिया है ज़िंदगी को लेके, जो कि पहले नहीं था। कंगना, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, जब मैं खुद दिल्ली आया था तो मुझे लगा था कि दिल्ली ने मुझे आज़ाद किया है बहुत तरह के पीछे के अतीत से। मैं आपको जानना चाहता हूँ आपसे कि आप जब मुंबई में होती हैं तो मुंबई की होती हैं या मंडी वाली होती हैं? क्या मंडी की में जो मोरालिटी थी वो आपको अब भी रोकती है कि यार ये मत करो, ऐसे मत पहनो, रात को मत निकलो, दिन को ऐसे करो, या मुंबई की एक नई मोरालिटी है जो अब आपके साथ एक टॉर्च के रूप में काम करती है? देखिए रविश सर, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी ऐसे ये समझ के नहीं जी कि मैं मंडी से हूँ या मैं मुंबई से हूँ। मेरी क्वेस्ट ज़िंदगी में हमेशा यही रही है कि आई जस्ट वांटेड टू बी अ फ्री पर्सन। जिस तरह के मैं समाज से आती हूँ, जिस तरह का मेरा परिवार है, हम लोग अभी भी मतलब जब भी लड़कियाँ साथ में बैठी होती हैं, कोई आदमी आ जाए कमरे में तो सब लोग इतना घूंघट डाल लेते हैं। तो उतने घूंघट में आप काम भी करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, पर वो घूंघट नहीं सरकना चाहिए। चाहे आपकी पूरी ब्रेस्ट बाहर दिखे, लेकिन घूंघट सर से नहीं सरकना चाहिए। तो वो उस तरह का, हम लोग राजपूत घराने से हैं, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हमारा इन्वायरमेंट था। और मुझे पता है राजपूत घराने का तो बहुत सारी बातें आपको लेकर नाक का भी सवाल बन जाता होगा फिर। बिल्कुल, हर बात पे। और हमारे वहाँ तो इतना एक्सट्रीम था कि मुझे तो मतलब बचपन से ही, मैं जब 12-13 साल की थी तो मुझे ऐसा घुटन महसूस होती थी। और मुझे एक इंसिडेंस क्लियरली याद है कि जो मेरे दादाजी हैं वो बहुत ही फ्यूडल मेंटालिटी के, इतना के मतलब जैसे मान लीजिए खाना सबको चपातियाँ दे रहे हैं, कुछ ऐसा, आपने कुछ उठा के खा लिया तो उस पर आपको इतना ज़ोर से चिल्लाएंगे कि मतलब आदमियों से पहले आपने खाना कैसे खाया घर में। तो इतना एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। फिर आई वॉज आई थिंक 13 और 14, तो मेरे पापा कहीं गए हुए थे किसी क्लोज बाय टाउन में, किसी केस को करके, कोई उनकी पेशी थी। तो वहाँ पे वो तो मैंने उनसे कुछ मंगवाया था, तो दादा उनसे फ़ोन पे बात कर रहे थे लैंडलाइन पे। एंड माय दादा इज़ ए IAS ऑफिसर। ऐसा नहीं कि वो कोई अनपढ़ गवार हैं, ये उनका पढ़े लिखों का ये हिसाब है। तो मैं दादा के पीछे खड़ी हो गई, मैंने कहा जब आपकी बात हो जाए तो मेरी बात करा दीजिएगा। तो उन्होंने सुना और फ़ोन रख दिया। कहते तुमको क्या बात करनी है? तो मैंने कहा मुझे कुछ बात करनी थी, और मैंने थोड़ा मतलब ऊंची आवाज़ में कहा। तो उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर का थप्पड़ मारा तो मैं दीवार पे जाके लगी, और आई ऑलमोस्ट हिट हिम बैक। सो ही गॉट स्कैर्ड कि मतलब ये इतनी छोटी सी लड़की ने मुझे ऑलमोस्ट हाथों, देन ही टोल्ड माई मदर कि तुम्हारी परवरिश इतनी ख़राब है, कि इतनी बदतमीज़ लड़की है, ये है वो है। सो माई पॉइंट इज़ कि उस एनवायरनमेंट में मुझे कॉन्स्टेंट जो घुटन है वो महसूस होती थी। तो जब मैं मुंबई आई तो मुझे एक तो लिटरली, मैं मतलब एक फिल्म की बात अलग है, लेकिन जो एक पिंजरा तोड़ के कि यार कोई आपके सर पे नहीं है, अजीब सी, ये हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ है और ये कब मतलब आपको ऊपर से, ये तो आपके घर के रूल है, और बाहर जाने के स्कूल में ये पहनो वो पहनो, तुम 12 साल के हो गए हो, तुमने अभी ब्रास शुरू नहीं किया, तुम्हारे पीछे स्टेन लग गया है, तो तुम्हारे पीरियड आ गए, अभी क्लासरूम से निकलो बिकॉज तुम मॉनिटर हो। तो जो लड़के हैं वो सब इतने कॉम्प्लेक्स में आएंगे, अभी क्लासरूम में तो उनकी चलती नहीं है बिकॉज वो सब फेल ब्रिगेड है, और वो क्या है, वो बड़े 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 होते जाते हैं। तो स्कूल के बाद वो खड़े हो जाते हैं बुली करने के लिए आपको। अब आपको बुली करेंगे तब भी आपके ही दादाजी को पता चलेगा, आप उनको कुछ बोलेंगे तभी भी आप ही के दादाजी को पता चलेगा। मतलब सारी चीज दादाजी को ही पता चलेगी। आप जब ये सब बताती हैं तो हमने किसी फिल्म स्टार को नहीं देखा कि अपने बैकग्राउंड को लेकर इतना खुलकर सामने आने का। तो मैं एक समझ रहा हूँ कि आप सिर्फ उस बैकग्राउंड से हिसाब नहीं कर रही हैं, बहुत बाकियों के लिए भी आप काम कर रही हैं। पर इससे इतना खुलकर बताने के कारण क्या आपके फिल्म स्टार होने की जो स्टेटस है, हैसियत है या पोजीशन है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? पड़ता है। काफ़ी लोग आई थिंक
कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में लोगों को होता है कि इंडस्ट्री बहुत ही क्लोज निट है और उनको होता है कि हो सकता है कल को कोई हमारी बातें बाहर निकल जाएं या इंडस्ट्री के कुछ अपने रहस्य भी होते हैं जैसे कि कुछ न कुछ तो चलता रहता है। उन रहस्यों पर पर्दा डालना आप सीख गई हैं? नहीं, मैं तो तभी तो मैं किसी ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ। क्या है गौसून को पता है कि इसका ये एकदम कोई फिल्टर नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आता कौन सी बात कब नहीं बतानी है। तो अच्छा, वो फिल्टर लगा के रखिएगा नहीं। एक दो फिल्मों का नुकसान जिंदगी में उठाने में कोई हर्ज नहीं है। कम से कम मेंटल पीस रहता है कि इसको क्या बोला था, उसको क्या बोलना है, वो कंटिन्यू कुछ करना नहीं है। जो है वैसा बोल दो हमेशा, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। आपने एक जिक्र किया कि आप राजपूत परिवार से हैं। हर कोई जब खास तरीके से मैंने देखा है कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, एक बार किसी न किसी मोमेंट में जब वो गुस्सा होते हैं या जब कोई चैलेंज करता है तो उनका कास्ट प्राइड आता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि मैं राजपूत की बेटी हूँ, हाथ मत लगाना, देख लेंगे? आई थिंक मुझे कास्ट प्राइड जो है ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है क्योंकि बचपन में जैसे मेरे पापा क्या करते थे कि अक्षत के लिए, जो मेरा छोटा भाई है, उसके लिए गन्स लेके आते थे, प्लास्टिक के मशीन गन्स लेके आते थे और उसको बोलते थे तुम कमांडो बनोगे, ये वो। तो माय फादर यूज्ड टू ड्रिंक इन द नाइट, तो वो उसके साथ में ऐसे कमांडो गेम्स खेलते थे। सो आई यूज्ड टू टेल हिम कि मैं क्या बनूंगी बड़े होके? तो क्या तुम्हें तो शादी हो जाएगी, तुम तो किसके घर चली जाओगी। तो मैंने कहा लेकिन मैं कुछ तो बनूंगी। तो लाइक अब तुम्हारा जो हस्बैंड बोलेगा तो तुम वो बनना। अच्छा ठीक है, तुमको क्या बनना है तुम भी बताओ। सो आई यूज्ड टू फील कि मेरे लिए कोई सपने ही नहीं है किसी के। सो उसी तरह से मेरे पापा की राइफल है वही राजपूतों के, तो उसको साफ करते थे। मारने तो उससे वो तीतर बटेर ही थे, लेकिन तीतर बटेर मारने के लिए वो राइफल नहीं गई थी। हाँ, साफ करते थे। तो अक्षत को बुलाते थे, देखो इसको ऐसे शूट करना है, उसको एयर गन से प्रैक्टिस कराते थे। तो मैंने कहा मुझे भी कराओ प्रैक्टिस, बिकॉज आई यूज्ड टू फील लेफ्ट आउट एक्चुअली। तो मुझे कहते मुझे भी कराओ प्रैक्टिस। तुमको क्या करना है? कल को पता चला कुछ जिसके घर जाओगी फिर अपना क्या बोलते थे मुझे, दुपट्टा मुंह में डाल के रोते रोते आओगी कि राजपूतों का नाम बर्बाद करोगी, कि वहां पे कुछ गोली वोली चला दी। सो इट वॉज नॉट लाइक वी आर रेज्ड similarly, like there was different expectation from my brother, there was different expectation. I think I was honestly like my parents were not against studies. वो चाहते थे कि मैं पढूं और हमेशा कहते रहते थे पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पर ये हमेशा बचपन से ही था कि पढ़ाई करके पैकेज कहीं डिलीवर करना है। वो शादी में जाना है और उस तरह से एक बक्से के साथ विदा हो जाना है, जिसमें एक फ्रिज भी होगा, एक टीवी भी होगा। So I could never feel a sense of बेवकूफ सा लड़का होगा लेकिन वो सॉफ्टवेयर में इंजीनियर होगा, है ना? तो I could never feel that pride in my lineage. और अभी भी मैं जाती हूँ घर तो मुझे लगता नहीं है कि ये मेरा घर है। जो मेरा मुंबई में घर है, जो मैंने खुद अपने मेहनत से कमाया है, वही मुझे आके लगता है जिंदगी में कि नहीं ये मेरी ऐसी जगह है जो मेरा घर है। इस पे भी आप ताली नहीं बजाएंगे? हिंदुस्तान में एक लड़की जब ये हासिल कर ले अपना घर, जो ना उसके बाप का है ना उसके पति का है, तो इस देश में एक बड़ी उपलब्धि है भाई। प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ये लड़ाई अकेली लड़नी पड़ती है। पर कंगना, बहुत सारी लड़कियां इसके जरिए जो मेरठ में है, मुजफ्फरनगर में है, अलीगढ़ में है, सब देख रही होंगी आप। उन सबको क्या करना चाहिए? अपने सपनों का पीछा करने के लिए आपकी तरह मुंबई भाग कर आना चाहिए, या शहर की दीवार तोड़नी चाहिए, या वहीं पे कुछ हासिल करना चाहिए? क्या करना चाहिए उनको? आई थिंक सबसे पहले तो मैं हमेशा मेरे जिंदगी में मानना है कि जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ हमेशा समझौता करना पड़ता है। कई बार जैसा आपने कहा 1-2 फिल्में नहीं मिलेंगी लेकिन आपको मानसिक शांति मिलेगी। उसी तरह से हो सकता है आपको सब कुछ ना मिले, लेकिन एक औरत के लिए उसकी डिग्निटी, उसका स्वाभिमान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि मुझे लगता है कि चाहे वो एक छोटे शहर की जवान लड़की हो, बच्ची हो, या कोई माँ हो या वर्किंग लेडी हो, हमेशा सबको थोड़ा सा लगता है कि लड़कियां तो सेल्फलेस होती हैं और उनका जो प्यार है वो भी सेल्फलेस है, उनके जो एम्बिशंस हैं वो भी सेल्फलेस होने चाहिए। तो ये एक बहुत ही गलत धारणा है, और मैं लड़कियों से, जो भी बच्चियां हैं, जो भी लेडीज़ हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि आप अपने मन की बात बताइए। आपको अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपको रिस्पेक्ट नहीं करती है तो आप उनको बोलिए, आप जताइए, बिकॉज
बहुत कई 100 सालों से ये धारणा है लोगों को कि माँ का प्यार ही कंडीशंस के साथ आए तो क्या फ़ायदा, तो मतलब दुनिया में तो फिर तो किस चीज़ का विश्वास करना चाहिए। अगर माँ ही प्यार के बदले में प्यार मांगे, रिस्पेक्ट के बदले में रिस्पेक्ट मांगे, कंसर्न के केयर के बदले में, तो फिर तो दुनिया में सब कुछ छल कपट हो गया। तो ये जो धारणा है लोगों की, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द वुमन काइंड और मदर, ये इससे तो हम ही लोगों को खुद ही लड़ना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि नहीं, अगर बेटा बदतमीज है, बदतमीजी करता है, आप पे हाथ उठाता है तो उसको उठ के एक लाफा मारो। आपको अगर आपके पिताजी आपके साथ बदतमीजी करते हैं, उनको कहिए कि आप ये नहीं सहेंगे। आपके जो बॉयफ्रेंड हैं या आपके जो बॉस हैं वो आपके साथ बदतमीजी करेंगे तो आप बताइए कि ये नहीं चलेगा। सो आई थिंक सबसे पहले तो अपनी डिग्निटी के लिए ही लड़कियों को लड़ना पड़ेगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं जो आप ही नहीं, देश की बहुत सारी लड़कियाँ लड़ती हैं, लड़ भी रही हैं। हंसल हमारे साथ हैं। इनकी 3 फिल्में मेरे दिमाग पर काफ़ी असर कर गई हैं। एक शाहिद और सिटी लाइफ आपने देखी हो तो, और अलीगढ़। ये तीनों फिल्म अगर आप किसी भी फिल्म की समीक्षा या धारा की नज़र से देखें तो हिंदुस्तान की महानतम फिल्मों में से एक हैं। लेकिन हमें अब आदत हो गई है 100 करोड़ 400 करोड़ के पैमाने से देखने की। अगर आप उससे ना देखें तो अंसल मैं जानना चाहता था, ये जो नई फिल्म आ रही है सिमरन, मैं थोड़ा उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जिस तरह से सिटी लाइफ में दर्दनाक कहानी, मैंने खुद ही लिखा था कि आप इतनी सच्चाई के करीब क्यों जाते हैं कि हॉल में पूरा दर्शक हंस रहा होता है, उसका मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन वहीं बैठ के मैं रो रहा था। मुझे लगा कि मैं शायद इस फिल्म के लिए फिट नहीं हूँ, या फिल्म यही लोग ज़्यादा समझ रहे हैं। कि उस जो आर्टिकल आपने लिखा था उसमें आपने कहा था कि अब बस करो हंसल। आपने ये हेडलाइन था शायद कि बस करो हंसल। तो मैंने उसको काफ़ी सीरियसली ले लिया। अच्छा, हाँ, तो आप वैसी फिल्म नहीं बना रहे आप? हाँ, तो मैंने सोचा कि एक ऐसी कहानी, एक ऐसे किरदार को, ऐसी कहानी को हमें कहना चाहिए जिसमें उम्मीद भी हो, जिसमें एक जिंदगी को लेकर उम्मीद से भरा एक किरदार मैं आपके सामने पेश कर सकूं। और ऐसी कहानी मिल गई, ऐसी कहानी हमें मिली। और उस किरदार को निभाने के लिए जो एक उम्मीद का प्रतीक मैं मानता हूं हमारे देश में, वो कंगना है। कि उस किरदार को निभाने के लिए कंगना जैसी आर्टिस्ट मिली। अगर कंगना नहीं होती तो मैं सिमरन नहीं बनाता। तो मैं ही नहीं आप? नहीं, सिमरन नहीं बनाता, तो मैं कुछ और बनाता जिसको आप फिर से कहते हैं कोई और भी तो लड़की मुंबई भाग कर आई होगी। बस करो, ये कहते हैं आप। जी, कोई और भी तो लड़की मुंबई भाग कर आई होगी, आप उसे चुन सकते थे कंगना की जगह। पहले मैं भाग रहा था कंगना के पीछे। मुझे कंगना एक एक्ट्रेस के तौर पर, एक आर्टिस्ट के तौर पर, मुझे वो कोलैबोरेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। कि मैंने बहुत सारे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया था, और इस किरदार के लिए कोई जो ज़िंदगी को समझता है, जो ज़िंदगी को एक इंटरप्रेट करके पेश कर सके, ऐसा आर्टिस्ट चाहिए था। और मतलब मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि कंगना जैसी आर्टिस्ट। मेरी खुशकिस्मती तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरी है, क्योंकि मुझे, जैसे आपने कहा हंसा सर की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मुझे हमेशा लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड टैलेंट है। जैसे कि इनकी सिनेमा इतना अच्छा है लेकिन बहुत ही सीमित है। तो मुझे लगा कि अगर मेरा कुछ नाम है थोड़ा बहुत, और अगर मैं इनके साथ कोलैबोरेट करके थोड़ा सा एटलीस्ट, क्योंकि फिल्में अच्छी हैं, वो ऐसा नहीं है फिल्में अच्छी मतलब दर्शकों को पसंद नहीं आएंगी या ज़्यादा बड़े पैमाने पे रिलीज़ होंगी, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं इनके काम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मुझे अलीगढ़ फिल्म इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, ऑल टाइम फेवरेट्स। तो मुझे लगा एक इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन होगी। तो सिमरन जब आप देखेंगे, इट इज़ स्टिल हंसल मेहता फिल्म। ऐसा लगता है कि एक आप हिडन कैमरा से किसी की लाइफ देख रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा लाइटनेस रखा है हमने, और थोड़ा ब्यूटीफुल म्यूजिकल सॉन्ग वगैरह करा के। तो इट्स नॉट, सो इट्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक। पिछले 7 सालों में ये पहला किरदार है जो जिंदा रहता है।
आपकी फिल्म में मेरी फिल्म आपकी फिल्म मेरी फिल्म में पहला किरदार है जो अंत में, शाहिद को मतलब मैं ये एंड आपको बता देता हूँ कि मेरा किरदार जो है जिंदा कंगना रहता है। बच गई तो कंगना होने की वजह से, पर आप सही डायरेक्टर के पास पहुंची, क्योंकि जिस फ्रेम में आपको मुंबई के लोग या दिल्ली के लोग, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो जब आपकी एक्टिंग के बारे में लिखें तो प्लीज़ ये ना लिखें बार बार कि कोई स्मॉल टाउन से आया है। लिखना चाहिए कि कोई एक्टर है जो उस कैरेक्टर में है, उसको किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है, किस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है। हंसल, मैं ये जानना चाह रहा था कि शाहिद को अगर आप आज के दौर में इतनी सारी घटनाएं होती रहती हैं, अभी घटनाएं हुई कि किसी को लिंच करके मार दिया गया, और शाहिद एक ख़ास परिस्थिति से निकलता है और फिर ह्यूमन राइट्स लॉयर बनता है। मैं जानना चाहता हूं कि उमर तो भी आपकी एक फिल्म है, दोनों में राजकुमार हैं, एक्टर हैं, आप किस तरह से रीइंटरप्रेट उसकी फिर से व्याख्या करना चाहेंगे आप उसकी? नहीं, शाहिद एक ऐसा कैरेक्टर है जो मेरा मानना है कि हमारे इस दौर का एक प्रतीक है, मतलब एक इंस्पिरेशन है। मैं सोचता हूँ कि आम आदमी की कहानियों में असली हमारे एक देश का इतिहास आम आदमियों की कहानी के ज़रिए ही लिखा जाएगा। तो मैं एक फिल्मकार होने के नाते सोचता हूँ कि मेरा काम है आम आदमी की कहानियों के ज़रिए आगे के जनरेशन्स को मैं हमारे इस टाइम का इतिहास बताऊँ, क्योंकि जो इतिहास हमारे आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी वो उस वक्त के गवर्नमेंट, उस वक्त के जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक तरह का इतिहास उनको पेश करेगी जिसमें हमारे इस वक्त की सच्चाई नहीं होगी। और जब वक्त की सच्चाई लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो वो करेक्शन कैसे करेंगे अपने आप में, अपने वैल्यूज़ में, अपनी आइडियोलॉजी में करेक्शन कहाँ से ला पाएंगे? क्योंकि आपको इतिहास ही सिखा रहा है कि भाई जो गलत था वो सही है अभी। तो मैं आम आदमी की कहानी के ज़रिए ये कहने की, जो शाहिद हो या सिमरन हो, सिमरन भी एक आम इंसान है। जैसे अमेरिका में हमने शूट किया है तो सब कहते हैं कि भाई तुम्हारे ट्रेलर में हमें कहीं टाइम स्क्वायर नहीं दिखा। हाँ, उसके बिना फिल्म कैसे बनाई आपने? वही टाइम स्क्वायर था ही नहीं, मतलब है ही नहीं। प्रफुल्ल पटेल जो कैरेक्टर है कंगना का, वो मतलब जो नेता राजनीति में वो कैरेक्टर नहीं, मुझे किसी ने पूछा कि भाई आपने फिर से उसमें राजनीति जोड़ दी, नहीं उसमें कोई राजनीति नहीं थी। पर यही अपने आप में राजनीति है कि आप टाइम्स स्क्वायर छोड़कर उन जगहों में जहां आम भारतीय जाके रहते हैं। कंगना इसमें हाउसकीपर प्ले कर रही है। अच्छा। एक होटल में हाउसकीपर, जो आम तौर पर हम यहाँ से, जैसे गुजरात में मेरे शहर से बहुत सारे लोग अमेरिका गए थे, तो छोटा था तभी लगता था कि अरे अमेरिका रहते हैं, कमाल है, मतलब ये तो इनकी निकल पड़ी। सारे लोग व्हाइट हाउस के बगल में रहते होंगे, ऐसा लगता हाँ, आपको लगता है कि न्यूयॉर्क में रहते हैं, टाइम स्क्वायर घूमने जाते हैं, कितना मतलब उनके पास बड़े बड़े टीवी होंगे, क्या क्या होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होगी। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब जब पहुँचते हो वहाँ तो आपको दिखता है कि भाई हम बम्बई में इनसे कहीं बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि वहाँ एक आपकी फिल्मों का गाना, मैं जानना चाहता हूँ सिमरन के गाने के बारे में, आप क्या करते हैं? इतना डार्क शेड होता है उन गानों का, उनका मेटाफर, वो सब लोकप्रिय गाने हैं, पर आप शूट कैसे करते हैं इन गानों को? पहले लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, क्या करते हैं? गाने बाद में लिखता हूँ। गाने बाद में लिखते हैं, फिल्म बन जाती है तब? हाँ, मैं फिल्म दिखाता हूँ गीत वो लिरिसिस्ट को और संगीतकार को कि भाई आप फिल्म देख लो और आप में जो इमोशन ये फिल्म जनरेट करती है उसके जरिए, ये कैरेक्टर जनरेट करता है, उससे आप लिरिक्स लिखिए। तो ये स्क्रिप्ट के लेवल पे, शूटिंग के लेवल पे तब तक आपके दिमाग में कोई गाना नहीं होता है? कई बार हम लोग गाना बनाते भी है और फिर फिल्म शूट करके, जैसे हमने कुछ गाने बनाए थे सिमरन शुरू करने से पहले, तो जब हम पहुंचे वहाँ अमेरिका में और कंगना ने एक इंटरप्रिटेशन अपना कैरेक्टर को देना शुरू किया, तो मैंने रियलाइज किया कि ये गाने तो किसी काम के नहीं है, तो हटा दिया आपने? तो वो गाने मैं भूल चुका हूँ, मैं वहाँ पहुँच के भूल गया। को नहीं जानता कि जो फिल्म बनाने के बाद लिरिक्स लिखाते हैं आप, गाने पूरे बनवाते हैं। अविश सर, वही मुझे, जब हंसा हमने फिल्म भी शुरू की थी तो सबसे अच्छी बात मुझे इनकी यही लगी, इन्होंने मुझे कहा कि, और आई थिंक उसी वजह से आई थिंक दिस हैज़ बीन सच अ ग्रेट कोलैबोरेशन, उन्होंने कहा कि कंगना दिस इज़ द मटेरियल, ये स्क्रिप्ट है, लेकिन मैं उन डायरेक्टर्स में से नहीं हूँ जो स्क्रिप्ट पे चलते हैं। तुम्हें क्या फील होता है अपने किरदार का? इज़ लाइक अलीगढ़ की स्क्रिप्ट कुछ और है, लेकिन जो मनोज ने किया वो, बिकॉज मैं अपने किरदार से इतने ज़्यादा उसमें डूब जाता हूँ कि अगर मुझे उसकी जर्नी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो घर में भी सेट के बाद भी उस कैरेक्टर में रहती हैं, जब तक आप शूटिंग में रहती हैं? जी, उसमें रहती हैं आप उस कैरेक्टर में? जी।
तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग वी विल मेक अ फिल्म विच वी लाइक ऑन द सो ऑन द सेट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कोलैबोरेटेड ऑन, और उसमें एक तो सिचुएशंस आई तो उसमें गाने अलग बने, पर ये इस तरह का एनवायरनमेंट के विच वेयर यू हैव द फ्रीडम, जबकि आई थिंक हमारे प्रोड्यूसर्स बहुत खुश नहीं थे इस बात से कि स्क्रिप्ट से मतलब नहीं है दोनों को, लेकिन बट दैट इज हिज प्रोसेस एंड आई रियली लव इट. नॉट मैनी पीपल डू इट, बट ऐसा नहीं है कि करते नहीं है, ये बहुत सारे डायरेक्टर्स का प्रोसेस होता भी है. 2-3 सवाल और पूछूंगा, हालांकि समय कम होने का, मैं डायरेक्टर्स का आदेश मानने वाला एंकर हूं, फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आपकी इजाज़त हो तो इजाज़त है कि नहीं है. देखिए, हमने एक फिल्म का पुराना डायलॉग है कि आपके पाँव बहुत खूबसूरत हैं, और जब मैंने देखा समीक्षकों को आपके बालों के बारे में लिखते हुए, तो मैं यहाँ खड़ा, आप लोगों के आने से पहले मैं आपकी तस्वीरों को देख रहा था, और इतना ज़्यादा मतलब उस कर्ली हेयर के बारे में इस तरह से लिखा कि जैसा ऐसा होना ख़राब है. तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, और आप और ऐसे ही होना चाहिए जैसे सबको ही होते हैं. लेकिन बुरा लगता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे हम जैसे लोग जब दिल्ली आ रहे थे तो अंग्रेजी को लेकर बहुत दुखी थे जी. और अंग्रेजी ने बहुत सताया, मतलब अब तो अंग्रेजी से दोस्ती हो गई है, लेकिन अंग्रेजी आई नहीं, पता नहीं किस वजह से नहीं आई. आपको तो आप तो दुखी होते थे, मैंने लोगों को दुखी कर दिया था. मैं अंग्रेजी बोलते थे और मुझे लगता था ये लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही मुझे लगता था यार अच्छी तो बोल रही हूँ मैं. तो ये ज्यादा प्रॉब्लम थी, लोग कहते थे मत थोड़ा हिंदी में बोलना. मैंने कहा यार मुझे आती है, मैंने पढ़ी हुई है अंग्रेजी. तो लोग मुझसे परेशान थे. मैं ये समझता था उस वक्त के हमारे जितने भी दोस्त होते थे, कहते थे यार अंग्रेजी नहीं आती, कैसे जाएं कैंपस की तरफ, लड़कियों से कैसे बात करें. मतलब मुझे पहली बार इतनी जिंदगी गुजारने के बाद पता चला कि लड़कियां भी अंग्रेजी को लेकर परेशान रहती हैं. मैं ये समझ रहा था कि लड़कियां तो पैदा होते ही अंग्रेजी जान जाती हैं. ऐसा नहीं हुआ. लेकिन आपको लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से जानता हूं कि मैं इसकी परवाह नहीं करता, तब भी नहीं किया, पर देख रहा था एक सोशल ऑब्जर्वर के रूप में, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में. लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मुंबई में हीरोइन होने के लिए बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी था, एक वक्त पे बहुत ज़रूरी था. लेकिन आई थिंक जैसे कुछ कलाकार हैं, मैं हम लोगों का बहुत काम मानूंगी इस चीज़ में. जैसे हमसे पहले लोगों ने बहुत काम किया है, उसी तरह से मैं हो गई, या पता नहीं, अब मैं कईयों के नाम नहीं लेना चाहती बिकॉज पता नहीं वो कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, पर जैसे इरफान सर हो गए, या बहुत सारे लोग हो गए जिन्होंने, ही इज़ एन इंटरनेशनल स्टार टुडे. सो छोटे शहरों से आने वाले लोग जिन्होंने इस तरह से काम किया है और सामने आके मीडिया में बोला है कि भाई हमको अंग्रेजी नहीं आती है, और उसके बावजूद भी एक सक्सेसफुल करियर उन्होंने पेश किया है, तो उसके करके बहुत एक्सेप्टेंस हो गई. अब तो मैं ये हर दिन आए दिन डायलॉग्स देखती हूँ फिल्मों में, ये कूल क्वेश्चन बन गया है. तो कहीं ना कहीं अब चेंज हुआ है. लेकिन जब हम लोगों ने शुरू किया था उस वक्त पे, जैसे मैंने कहा कि जो लोग बाहर से आते थे जिनको हिंदी नहीं आती थी, उनके लिए ज़्यादा चांस था, चाहे वो मॉडलिंग हो जिसमें तो बोलने की जरूरत भी नहीं है. तो मैं आपके चाहने वालों को क्या कहूँ कि अभी गलत अंग्रेजी ही बोलना चाहते हो तो बोलना शुरू करो यार, मतलब उससे फिर हाँ, मुझे मेरा नज़रिया बहुत अलग था. सबसे पहले तो मैं सच कहूँगी कि ये मजाक की बात नहीं है. मुझे लगता नहीं था कि मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, जबकि मुझे आती नहीं थी. अब मुझे समझ आता है. तो मुझे कहते थे, कहीं ना कहीं मुझ में ये भावना लाने की कोशिश की जाती थी कि तुम चुप करो, मत बोलो, ये वो. लेकिन मेरा जो उसके नज़रिया था कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं सीख नहीं सकती. तो मैंने ट्यूटर को बुलाया, मैंने कहा देखो हम ऐसे बोलते हैं, इसमें क्या खराब है. तो कहती तो पूरा खराब है. तो मैंने कहा इसको ठीक करो. मैंने कहा इसको ठीक करो. तो वो ठीक करवा के फिर मैंने बोला. सो माय पॉइंट इज कि हमको कौन रोकेगा कुछ करने से, मगर जो एक इंसान के अंदर जो चीज़ की कदर होनी चाहिए और जिस चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए, वो अंग्रेजी या चाइनीज़ नहीं है, वो है इंसान की इंसानियत. और जब तक वो आप में है तब तक कोई भी आप में कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं पैदा कर सकता. कोई करने की कोशिश भी करेगा तो आप उसको उसी की भाषा में जवाब दीजिए. कोई ऐसा इलाका इस देश में है जहां लोग वोट करके कंगना को पार्लियामेंट भेज सकें?
कोई है तो प्लीज़ बताइए कि ऐसे लोगों को जाना चाहिए कि जहां जाकर बोल सके कि इंसानियत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। आजकल बहुत ज़रूरत है उसकी। वैसे एक आखिरी सवाल कि आप भी अभी भी आप रिबेल हैं, क्या आप भी जिस फ्रेम में हीरोइन को देखा जाता है उस फ्रेम में जाकर कंफर्टेबल हो गई हैं आप? मैं हाँ। मुझे अभी टू बी ऑनेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा महसूस होता है अभी भी कि बहुत ज़्यादा प्रेजुडिसेस हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हंसल सर को ही कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपकी हीरोइन ने इतनी सजेशन दी, आपने मान ली? मतलब क्या आदमी हो तुम, लड़की की बात मान ली, यू नो। सो तो ये जो है उस माहौल से मैं तंग तो आ गई हूँ। मुझे एक, अगर मैं एक कलाकार हूँ तो मुझे एक अगर मैं एक तरह अपने, चाहे वो मेहनताना के लिए लड़ाई करूँ या अपने स्क्रीन टाइम के लिए, तो उसके लिए जो मुझे जिस तरह से तो उससे मैं काफ़ी परेशान तो हूँ। बट आई एम नाउ ट्राइंग टू वेंचर इनटू डायरेक्शन। ये तो नहीं कहा जा सकता कि मैं इस स्पेस में हैप्पी हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म में आपने हंसल को काफ़ी डायरेक्ट किया है मतलब? जी नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं। भी डायरेक्ट नहीं किया है। मैंने एक्टिंग की है और मैंने राइटिंग की है, लेकिन डायरेक्शन अगर मैंने की हो तो मैं बहुत गर्व से कहूंगी, लेकिन जब मैंने की ही नहीं कोई चीज़ तो मैं ऐसे झूठ लेकिन क्यों बाद बोलूं? में करेंगी तो अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सिमरन नाम की बहुत कैरेक्टर हैं हिंदी सिनेमा में। अब तो मेरे दोस्त की कई पत्नियों के नाम हैं। मैं पूरा भरोसा है कि उनका ओरिजिनल नाम नहीं होगा, लेकिन शादी के बाद रख दिया गया है। तो तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो कैरेक्टर है, हाँ, क्या उन्हीं नाम के सिलसिले में है या फिर ये भी एक धारणा को तोड़ने के लिए आ रहा है कि हम लड़कियों को उस नज़र से देखते हैं? ये भी उसके एस्पिरेशंस और कैरेक्टर है? वो एक तरह से ये सिमरन की ग्रोथ है। मतलब इसमें दो लेयर्स है सिमरन टाइटल में, कि डीडीएलजे ने एक सिमरन को आपकी तरफ, काजोल ने जो सिमरन हाँ। एक सिमरन को रखा था जो जो अपने कमरे में काफी लिबरेटेड है, हाँ, लेकिन खुद बाहर नहीं है। हाँ। तो वो एक मेटाफर है आज के जमाने में। आज जो सिमरन है उसकी आज़ादी की जो धारणा है वो बिल्कुल अलग है। तो उस आज़ादी का मेटाफर है सिमरन। और मतलब एक कोइंसिडेंस हो गया सिमरन का कि कंगना ने जो पहली फिल्म 10 साल पहले गैंगस्टर की थी उसमें कैरेक्टर का नाम था सिमरन। उसका पहला कैरेक्टर था सिमरन। तो वो एक कोइंसिडेंस था। तो वो भी है कंगना एज एन एक्टर, मतलब जो ग्रोथ है एज एन आर्टिस्ट, जो उसका ग्रोथ है उसका भी कहीं पर मेटाफर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फिल्म ज़रूर मज़ेदार होगी। आपकी है तो आपने तीनों फिल्म बहुत अच्छी बनाई है। उमेर तो मैंने देखी नहीं है। उमेरता मैंने देखी नहीं है। पता नहीं हम लोग को देखने देंगे कि भी नहीं है। देखने देंगे कि नहीं देंगे, ये भी एक समस्या है। पर इसीलिए आपने कहा कि आज़ादी के कई मेटाफर की ज़रूरत है। एक मेटाफर का नाम सिमरन है, एक का नाम सेंसर फ्री है, एक का नाम मीडिया कंट्रोल है। तो हमें उन सब चीज़ों से भी आज़ाद होना है। आप लोग अगर सवाल पूछना चाहें तो मैं आदतन सीरियस आदमी नहीं हूं, लेकिन इतने अच्छे लोग मिल गए तो बातचीत सीरियस हो गई। जी, मैं देता हूं अपनी माइक, लीजिए। Hi Kangana, I'm really happy to see you today because I know you from the time when you were not an actress. We were together in the Alliance Français in the French class in Chandigarh. Oh, yes. So you were just the same. The kind of confidence you had then, you have it today. She was always a head turner. I still remember we were all sitting in the class and a girl entered. You were wearing a black short dress, beautiful black curly hair, and everybody was like, "Yaar, ye kaun hai?" So it's just the same effect you have on people. French was also like English. Yes. इतना मैंने सीखा, सब कुछ किया, और जब मुझे क्वेश्चन मार्क आया तो मैं सोचूं मुझे कुछ आ क्यों नहीं रहा है, मुझे तो सब कुछ आता था। तो उसमें भी मैं फेल हो गई। The kind of confidence and the kind of charm you had then, you have it today. So we cannot really say that small town में थे तो you were different. You were rocking then and you're rocking today. So good to see you. Thank you so much. और मैं चंडीगढ़ से याद आया तो मैं जब फ्रेंच क्लास के लिए जाती थी मिनी स्कर्ट पहन के, तो मेरे जो अंकल थे पीजी के, भंडारी, मिस्टर भंडारी, मेरे पीछे से पापा को फोन करते थे, आज बड़े छोटे कपड़े पहने हैं उनने। मतलब छोटा शहर, छोटे कपड़े।
पहले तो आप ये बताइए कंगना, हमने पीछे सुना कि आपको कुछ एक शूटिंग करते हुए जी। एक्शन उसमें जी। बहुत चोट लग गई थी। जी 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 तो हम सब बहुत चिंतित थे। आई होप यू आर फाइन नाउ। जी, अभी तो उसको मैंने कंसील किया है, बट यस, आई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई जस्ट एस्केप्ड मेजर इंजरी ऑन माय आईज, बट अभी ठीक है, थैंक यू। दूसरी चीज ये है कि हम अक्सर यही सुनते हैं कि आप अवार्ड्स के लिए कभी जाना नहीं चाहती। ये मतलब हर जगह यही बोला जाता है। और मैं रवीश जी आपसे पूरा सहमत नहीं हूं जब आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग तो इनकी तारीफ नहीं करते होंगे फैशन में, पर मैं जानता हूं कि फैशन फ्रेटर्निटी सारे लेख इनकी तारीफ में ही लिखे गए थे जी। अच्छा, जी, बहुत इनकी बढ़िया। आलोचना में नहीं। जब तारीफ का भी जो फ्रेम है, तो मैं उस फ्रेम में देख रहा था कि तारीफ करने वाला भी कंगना के साथ कितनी ज्यादती कर रहा है कि तमगा बहुत खराब लगा रहा है। So what I want to say is that I agree about the awards in acting, but the youth of today and the nation and the fashion fraternity and everybody connected with it think you are the ideal role model for all the youth as far as fashion is concerned. Thank you. So we really feel that you're amongst the most fashionable people that the industry has had. Sir, coming from you is great compliment. Thank you. And you're such an influencer. तो क्या अगर आपके पास कोई फैशन अवार्ड्स या कोई स्टाइल अवार्ड्स या इसके लिए बुलाया जाएगा तो आपका नजरिया कुछ बदला हुआ होगा इसके लिए? एक तो लाइक आई सेड, यू नो, जो हम लोगों की फिल्म अवार्ड्स हैं, दे आर वेरी करप्ट टू एन एक्सटेंट के दे ऑलमोस्ट लाइक मैनिपुलेशन। आपको कहेंगे ये अवार्ड मिलेगा लेकिन आपको डांस करना पड़ेगा, या आप थोड़ा लेट हो जाएंगे तो किसी और को दे देंगे। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलते हैं, तो उनसे मैं तो दूर ही रहती हूँ। लेकिन ये जो फैशन अवार्ड्स हैं, मैं कभी एक्चुअली, मुझे पता नहीं है, अगर मुझे कोई ऐसा इनवाइट आए तो आई विल सी इफ इट इज यू नो, इफ आई फील लाइक नो, करप्ट का तो पता नहीं है, लेकिन दिया जा रहा हो। लेकिन वो तो आप कभी नहीं पता कर सकते। बट एटलीस्ट इट शुड नॉट बी ए, आई थिंक यू नो, इट शुड बी नाइस अपलिफ्टिंग थिंग फॉर एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया। समय कम है, आप बाकी सवाल पूछ सकते हैं। आप पूछ लीजिए। हाँ, To ask you a question, first and foremost, many congratulations to you. Thank You are you. a source of inspiration for many girls right now in this country. Thank you. Since you have come from a small town, Mandi, and in Bombay you have made, and entire world is looking upon you now. Also, since you have transformed yourself from the day you have started एंटरिंग इन द फिल्म इंडस्ट्री। 10 साल पहले जब आपने गैंगस्टर करी थी, अब जो मूवीज कर रही हैं आप, क्वीन करी है आपने, सिंगल हैंडेडली यू हैव टेकन दैट मूवी फॉरवर्ड। दिस सिमरन आल्सो, आई एम श्योर, लाइक, यू नो, यू आर द हीरो ऑफ दैट मूवी। सो व्हाट नेक्स्ट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नाउ? आर यू गोइंग टुवर्ड्स सम सोशल कॉज? व्हाट इज द एजेंडा? व्हाट इज द मोटिव ऑफ कंगना नाउ? See, right now, honestly, like at 30, I feel that I want to do stuff which a film takes nearly 2 years of your life. The kind of contribution that I like to give to films. And I don't want to do something which doesn't, I mean, other than entertainment, it should definitely have some underlying significance. It could be anything, but I should be able to communicate directly to my audiences and cause some sort of impact, maybe not dent, but some sort of, you know, like a communication which brings me closer to them. If it doesn't have it, if just maybe it's a hit film or non-hit, or, you know, like, great, but if there is no intimacy with the people of my country, then it doesn't make sense for me anymore. But very hard to come up with products like that. But then, yeah, that's what I'm trying to do with my taking up direction and things like that. You are very impactful, Kangana. You have already created lots of impact. शुक्रिया कंगना और हंसल आपका। मुझे यकीन है कि आपकी लड़ाई अभी भी आपकी ही यात्रा रहेगी ज़िंदगी की, और जो दूसरी तमाम लड़कियां हैं उनको भी अपनी ही यात्रा करनी पड़ेगी। हम उस देश में अभी भी हैं जहां 2 लड़कियां 20-21 साल की उम्र में बाबा जो गुरमीत राम रहीम हैं उनके खिलाफ लड़ती हैं, और इतना बड़ा ताकत का साम्राज्य ढह जाता है, लेकिन हमारा मुल्क बहुत कंजूसी से उन 2 लड़कियों के लिए ताली बजाता है। तो उसकी भरपाई हम यहाँ कर देते हैं। अभी तक किसी बड़े नेता ने उन 2 लड़कियों के लिए ताली नहीं बजाई, अभी तक किसी ने नहीं।
तो इसलिए मुझे पता है, मैं सपने नहीं दिखाना चाहता। जो भी लड़की जहाँ भी कंगना को सुन रही है, उसे खुद कंगना बनना पड़ेगा, अपना कंगना बनना पड़ेगा और उसे नए सिरे से इस लड़ाई को लड़नी होगी और किसी मंजिल पर पहुंचना होगा। हम लोग वहां मिलेंगे पत्रकार के रूप में, दर्शकों के रूप में, ताली बजाने के लिए। तो आप आइए और चल पड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यूथ फॉर चेंज में आने के लिए। थैंक यू। This has been such a pleasant, such a nice, freewheeling and lovely chat. Otherwise, हमेशा you're always on guard के फिर से पूछ लेंगे कुछ. Thank you so much for lovely time.